Okay, so welcome. This is the part 2 of chemistry of lipids. So in part 1, we studied till the functions of lipids. We ended at SSIC, which was a mnemonic to remember it. So one was the storage form of energy in the adipocytes, if you remember. One animation I had inserted. Second would be the structural form of component, which is the phospholipid bilayer. I stood for the rapid propagation of depolarized wave along myelinated sheath. So this I tried explaining with an example. Basically, I stands for electric insulator. And why was it an insulator, or why are lipids insulators? Because they are non-polar. This concept was explained in the last video, and the last function was cholesterol. And I further said that the whole metabolism of cholesterol will be coming in upcoming videos. So now in this part 2, we will be continuing with the other functions of lipids. Okay, so in the other functions we have these points. So lipids play important role in digestion and absorption. Now digestion and absorption of what? So probably in your classes before starting lipids, they would have started with vitamins or minerals, or maybe they would have started with this. So when you will be studying about vitamins and minerals, you will be studying about two types of vitamins and minerals. Fat soluble would be one, and second would be water soluble. Now this water soluble lipids, in this we've basically got the B complex, in which we've got different types of vitamin B's and vitamin C, while the remaining ones, that is vitamin A, D, E and K, all of them are fat soluble, because of which during their transportation lipids play an important role. So when you will be studying about, for instance, vitamin A, in its transport in for example Satyanarayan, there's a flow chart given. When we'll be covering vitamin, I'll also cover that as well. Apart from that, when you will study lipid, the metabolism of lipid, which will come in, like, which is little far away from now, but in that you will be basically studying about the LDL, HDL, VLDL mechanisms. So in that also you will be studying about all these things. Let's move to the next point. So next point is enzyme activators. So lipids also act as enzyme activators. Now if you were to give examples, because remember one thing in biochem, even just for understanding or when you're writing exams and theory papers, so if you give at least one or two real examples, so not examples like A plus B or something, which was a very common mistake in enzymes, but real examples. For instance, glucose 6-phosphatase. Apart from that, beta hydroxybutyrate dehydrogenase. Now this again is a part of, it is an enzyme in lipid metabolism, right? So it is an enzyme in lipid metabolism. So right now it may be a little complex, so you can skip it. You don't have to सब कुछ रटना नहीं होता, ये समझना है तो ये बाद में, अभी के लिए you can skip. Then there's a monooxygenase system. This again in ETC, जो electron transport chain आएगा उसमें समझ में आएगा, ठीक है? So these were the enzymes. So they are activated by phosphatidylcholine lecithin, which is again phospholipid, which is a derivative from here. Apart from that, एक और point जो next point आप देखोगे, that is lipids along with proteins, they form something called as lipoproteins. अब lipoproteins का क्या example है? Transportation of various lipids from one tissue to another. Now this another could be another tissue as well, or bloodstream directly. तो बेसिकली ये पूरा मैकेनिज्म अगेन लिपिड मेटाबॉलिज्म में, जो आगे की वीडियोस में है उसमें आएगा. बेसिकली लिपिड प्लस प्रोटीन विल फॉर्म लाइपोप्रोटीन. प्रीटी क्लियर फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ, राइट? अब अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, सो उसमें दिस विल कम इन अपकमिंग वीडियोस. बट इफ़ यू वांट टू हैव अ बेसिक आइडिया कि कहाँ से कहाँ तक जाता है, उसके लिए लेट मी जस्ट से काइलोमाइक्रॉन्स. तो काइलोमाइक्रॉन्स को फ्रॉम योर फ्रॉम योर इंटेस्टाइन टू द अदर टिश्यूज. Okay, VLDL, that is very low density lipids, they go from your liver, so they go from your liver to various other tissues. Then you've got LDL, that stands for low density lipid, and इसको हम लोग bad cholesterol भी बोलते हैं. Why? Because it goes from blood to other tissues. अब आपके पास blood है, right? तो ये है blood, for instance. आई नो मेरी ड्राइंग थोड़ा इग्नोर करना, उससे बहुत सारे अलग अलग टिश्यूज़, फॉर एग्जांपल लिवर इटसेल्फ वापस इसमें या फिर किसी और टिश्यू में अक्यूमुलेट हो रहा है. तो इससे क्या हो रहा है? अक्यूमुलेट हो रहा है, राइट? तो ओवरऑल फॉर एग्जांपल आर्टरीज भी है, सो इट कैन लीड टू द थिनिंग ऑफ दैट एज वेल. बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि जो इन अ फॉर्म ऑफ फैट ये डिपॉजिट हो रहा है, सो इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. तो इसीलिए इट इज़ कॉल्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल. शायद अभी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ ना आए, बट बेसिकली जब हम इसका पूरा मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, इसकी पूरी एक साइकिल है, थोड़ी सी देखने में टफ लगती है, बट आई एम टेलिंग यू, एक बार मतलब व्हेन वी रीच देयर, मैं उसको बहुत सिंपल वे में आई एक्सप्लेन. मैंने भी वैसे ही सीखा था. एनीवेज, देन HDL, सो इसका ऑपोजिट एज यू वुड हैव गेस्ड, हाई डेंसिटी लिपिड. सो इसको वी ऑल्सो कॉल इट एज गुड कोलेस्ट्रॉल. वाई? तो इसका ऑपोजिट कर दो, तो ये बाकी पेरिफेरल टिश्यूज से लिवर में, ओके, दिस इसमें बाकी ऑर्गन्स में यू कैन एक्सक्लूड लिवर, वाइल आई टेल यू लेटर. Okay, sorry for that glitch. I kept saying, I didn't notice that it wasn't recording. Anyways, तो LDL में बेसिकली क्या होता है कि ब्लड से बाकी टिश्यूज़ में लेके जाता है. अब बाकी टिश्यूज़ में लिपिड्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो बॉडी के लिए ओवरऑल अच्छा नहीं है, राइट?
तो फॉर एग्जाम्पल जब आप ओबेसिटी के भी एकदम बेसिक्स में जाओगे सो इसके बारे में यू कैन स्टडी। HDL ऑन द अदर हैंड हाई डेंसिटी लिपिड, तो ऑब्वियसली LDL अगर बैड कोलेस्ट्रॉल था, HDL इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल। ये पेरिफेरल टिश्यूज़, तो बाकी टिश्यूज़ फॉर एग्जाम्पल आपके लिम्स और वॉट एवर द अदर टिश्यूज़ आर, उससे लिवर पे लेके आता है। सो वाई इज़ इट गुड इज़ क्योंकि लिवर जो है फिर वापस ये जो लिपिड्स है उसको मेटाबोलाइज करके छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करके एंड देन फर्दर इट कैन, सिंस इट्स ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर पीसेस, तो अब ये बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, तो इसीलिए HDL इज़ कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉल, तो ये हमने एक और पार्ट 1 की वीडियो में हमने पहले ही पढ़ा था कि कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस इज़ अ फंक्शन ऑफ योर लिपिड्स। बट इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि स्टेरॉयड हार्मोन, जिसमें मैंने आपको एक न्यूमोनिक बताया था मग्स विदाउट द यू, MGS, फिर इसका फर्दर एक न्यूमोनिक बताया था मा, GC एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल सिर्फ स्टेरॉयडल हार्मोन्स नहीं, बाइल सॉल्ट्स का भी प्रिकर्सर है। फॉर एग्जांपल जो आपका ग्लाइकोकोलेट हो गया या फिर टोरोकोलेट हो गया, तो इसको फर्दर जब हम लोग इसका आप सिंथेसिस पूरा पढ़ोगे बायोकेम में भी एंड ऑल्सो इन फिजियो, तो उसमें यू विल सी दैट इसका प्रिकर्सर इज कोलेस्ट्रॉल। तो लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं एंड कोलेस्ट्रॉल फर्दर फॉर्म्स बाइल सॉल्ट्स, और ये एमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, विच इज़ वॉट बेसिकली व्हेन वी स्टडी समथिंग कॉल्ड योर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स, तो उसमें आप देखोगे कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने में, जैसे अगर कोई बड़ी चीज़ है उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा, राइट, तो तब अब्जॉर्ब डाइजेस्ट करना और अब्जॉर्ब करना ईजियर होता है। तो ये जो बाइल सॉल्ट्स है ये एमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो हेल्प इन, इसका एक और फंक्शन जो है लिपिड्स का, दैट वुड बी इकोसोनॉइड्स। अब इकोसा का मतलब ही 20 होता है। ये भी बेसिकली एक अलग से चैप्टर है, इसका पूरा हम सिंथेसिस का पाथवे पढ़ते हैं, वी गॉट साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे। अभी ये टर्म आपको बड़ा लग रहा होगा बट टेंशन बिल्कुल मत लो, इसको बहुत ईजी वे में मैं बता दूंगी, बट अभी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है राइट नाउ। आपको बस इतना समझना है दैट ये इकोसोनॉइड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब इकोसोनॉइड्स के एग्जाम्पल्स यू कैन लर्न, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, यू हैव गॉट प्रोस्टासाइक्लिन्स, उसके बाद थ्रोम्बोक्सिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स, राइट। इसके अलावा ये जो इकोसोनॉइड्स है दे आर ऑल्सो फिजियोलॉजिकल मॉड्यूलेटर्स। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट फंक्शन, modulators. Okay, moving to the next function. Okay, तो नेक्स्ट फंक्शन में वील स्टडी कि लिपिड्स का जो एक और फंक्शन है दैट इज सेकेंडरी मैसेंजर, तो PIP3 विच स्टैंड्स फॉर फॉस्फो आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो कंपाउंड है दिस यू विल ऑल्सो स्टडी इन फिजियो एज वेल एज बायोकेम। तो ये जो कंपाउंड है वो लिपिड्स जो है सेकेंडरी मैसेंजर में काम करते हैं, दैट इज अ फंक्शन। तो उस सेकेंडरी मैसेंजर का एग्जाम्पल है PIP3, सो दैट इज वाई दिस इज अ फंक्शन। तो इसका अगर आपको एग्जाम्पल देखना है कि PIP3 जब हम लोग सेकेंडरी मैसेंजर्स देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल साइक्लिक AMP जो हमने क्लास 11-12 के बायो में भी पढ़ा होगा, उसके अलावा जो PIP3 है स्पेसिफिकली वो हमारा कौन से हार्मोन्स के लिए हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। बेसिकली सेकेंडरी मैसेंजर क्या है अगर आपको नहीं पता, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेल है, अब या तो कोई भी रिसेप्टर है, तो हार्मोन आ गया और एक रिसेप्टर आ गया, तो हार्मोन रिसेप्टर से बाउंड करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, करेक्ट। अब वो कॉम्प्लेक्स या तो डायरेक्टली आ जाएगा सेल में या डायरेक्टली न्यूक्लियस में। अब अगर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास इफ़ इट्स नॉट एबल टू इंटरैक्ट उसके बायोकेमिकल नेचर या किसी भी और रीज़न की वजह से, तो क्या होता है बेसिकली यहाँ पे आपका सेल है, H और R ने ठीक है अपना कॉम्प्लेक्स बनाया, बट यहाँ पे वो डायरेक्टली जा नहीं सकता, तो विद द हेल्प ऑफ समथिंग कॉल्ड सेकेंडरी मैसेंजर्स, अब उसके साथ ये अंदर जाएगा या तो न्यूक्लियस में या फिर यहाँ पे अपना मोड ऑफ एक्शन, जो भी उसका मोड ऑफ एक्शन है वो करेगा। जैसे अगर न्यूक्लियस में इसको mRNA या कुछ भी सिंथेसाइज करना है वो करेगा, एंड दैट इज़ हाउ अब द हार्मोन विल एक्ट। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीटोसिन हो गया आपका, ये वैसोप्रेसिन हो गया, जैसे आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उसमें हेल्प करता है, ठीक है, वैसोप्रेसिन, फिर वाटर के मेटाबॉलिज्म में बाद में आप पढ़ोगे। उसके अलावा टू ऑफ द लास्ट फंक्शंस अबाउट लिपिड्स दैट विल बी स्टडिंग वुड बी, फर्स्ट इज कार्डियोलिपिड। अब ये भी हम अपकमिंग चैप्टर्स में वी विल बी स्टडिंग अबाउट दिस। तो ये बेसिकली जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, करेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, सॉरी ये इन एक्सक्यूज माई डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा बिकॉज एनीवेज। तो माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें एक लिपिड होता है दैट इज नोन एज कार्डियोलिपिड, उसके फॉर्मेशन में भी लिपिड्स हेल्प करते हैं, सो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ लिपिड्स। तो और ये बेसिकली IMM किसका पार्ट है, ETS दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, तो ये इसको इंटैक्ट रखता है। तो बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को कौन इंटैक्ट रखता है, कार्डियोलिपिड, विच इज वाइट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर एंड देयर फंक्शन। तो अगर ये ETS, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया इंटैक्ट है मतलब उसको माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को अच्छे से उसने संभाल के रखा हुआ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से बना हुआ है, इट्स नॉट ब्रेकिंग, वो टूट नहीं रहा, तो आपका जो पूरा ETS का जो पूरा आपका पाथवे है वो चलता है। और ओवरऑल जो फंक्शन है, जब पूरा NADPH उससे एनर्जी जनरेशन हम पढ़ेंगे, वो पूरा जो कॉम्प्लेक्स है इट वर्क्स, तो इसीलिए इट इज़ अ फंक्शन ऑफ लिपिड। एंड लास्टली जो लिपिड है वो हमारा दे ऑल्सो हेल्प इन कोएगुलेशन, सेल टू सेल कॉन्टैक्ट, सेल टू सेल अडेशन एंड सेल टू सेल सिग्नलिंग। अब ये आपको थोड़ा वेग लग रहा होगा बट ये एज अ लास्ट पॉइंट यू कैन राइट, ठीक है। कोएगुलेशन में भी ये काम करता है, फिजियो में यू विल स्टडी अबाउट दिस, एक पूरी आपके पाथवे आएगी इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। सेल टू सेल कॉन्टैक्ट, दो सेल्स जब कॉन्टैक्ट में आते हैं, ये बेसिकली थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे हो जाता है। देन सेल टू सेल अडेशन, कैसे वो दोनों
अटैच करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते कैसे, दैट इज सेल टू सेल एडिशन एंड सेल टू सेल सिग्नलिंग, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये डिटर्जेंट्स और सर्फेक्टेंट्स के फॉर्मेशन में भी इसका एक पार्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्टडी अबाउट not lecithin but other structures, ये भी upcoming chapters में you will study. So these were the functions. Next we will move on to the classification of lipids.